Hello dear students, welcome back. In this video, today we will discuss about production relationship, in which we will discuss first of all factor product relationship. As we know that production relationships can be divided in three relationships. One is factor product relationship, other is factor factor relationship, and third one is product product relationship. We will discuss each relationship separately in separate videos. So in this video we will discuss only about factor product relationship. What is the relationship between factor and product? So let's have a look and discuss the things step by step. Let's have an introduction of this relationship. This is a basic production relationship, as we know that, between inputs and output. It also known as इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप. इसको हम फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप बोले या इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप बोले, बात एक ही है. द गोल ऑफ द रिलेशन इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इसका जो है गोल होता है. ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन मीन्स व्हाट? मीन्स मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट. So optimization denote the maximum returns from minimum cost. Simply, it deals with the resource use efficiency. Yes, this relationship concerned deal with the resource use efficiency and helps to the producer in deciding how much to produce. ये रिलेशनशिप ये बताता है कि रिसोर्स को कितने एफिशिएंटली हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी कैसी है, और फार्मर्स को मदद करता है ये डिसाइड करने में कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करें, हाउ मच मतलब कितनी क्वांटिटी में हम उसको प्रोड्यूस करें, सो दैट कि वी गेट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. दैट इज अवर गोल इन दिस रिलेशनशिप. This also helps producer in determination of optimum input use and optimum level of output. ये भी फार्मर्स को हेल्प करता है कि हमारा इनपुट जो है हम किस लेवल तक यूज़ करेंगे. व्हाट इज़ द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इनपुट यूज़ एंड ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट. इसको भी जो है ये डिटरमाइन करने में प्रोड्यूसर का हेल्प करता है. And this relationship can be expressed as y is a function of x1 slash x2, x3 and xn. Here we know that y is the output and fx is the function of x1 is a variable factor and x2, x3 and xn are the constant factor. And this relationship can be explained by the law of diminishing returns. इस रिलेशनशिप को जो है, यही रिलेशनशिप जो है वो बेस्ड होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पे. बिफोर गोइंग ऑन this particular production function or this explanation of this relationship, we have to know about few basic important terms and concepts which is used in this particular relationship. First is total physical product. What is it? Total physical product is the amount of output obtained by using different units of inputs measured in physical units like kg and tons.
टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है? सिंपली कि जो भी हमने टोटल आउटपुट हमको अभी मिला है उसको हमने फिजिकल यूनिट्स में मेज़र कर लिया है। चलिए मान लीजिए हमने डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इनपुट यूज़ किया और हमने दिस मच अमाउंट जो है प्रोड्यूस कर लिया, आउटपुट हमको इतना आउटपुट मिला। अब उस आउटपुट को हमने मेज़र कर लिया फिजिकल यूनिट्स में कि भाई वो कितना केजी है, कितना टन है, कितना क्विंटल है। सो द टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट which is measured in physical units like kg and tons is known as TPP, total physical product. Another important term is average physical product. Output per unit of input on an average is termed as APP. It is given by y by x. जो हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है या जो टीपीपी होता है उसको हम जो हमारी टोटल इनपुट से उसे डिवाइड करेंगे तो वो आपका एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट आ जाएगा। अनदर इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस रिलेशनशिप टोटली वी कैन से बेस्ड ऑन दिस मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। सो वी हैव टू नो very seriously and very carefully and clearly. Marginal physical product is addition to total output. What is it? It is addition to total output obtained by using an additional unit of input. हमने एक एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट देके टोटल आउटपुट में कितना एडिशन किया, वही अमाउंट जो है आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है। How it can be measured? It can be measured as change in y, that is total output, and divided by change in x, that is input level. हमने इनपुट में कितना चेंज किया उसकी वजह से आउटपुट में कितना चेंज हुआ, दैट इज या दैट डिफरेंस इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। एंड one of the important concept is elasticity of production. Elasticity of production क्या होता है? This is the proportionate change in output as compared to proportionate change in input. Or in other words, we can say that percentage change in output due to percentage change in input. इनपुट में हमने कितना परसेंट चेंज किया और उस चेंज का आउटपुट पे कितना परसेंट चेंज हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इनपुट में 1% चेंज किया, एक इनपुट को हमने 1% से घटा दिया, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट और चेंज ऑफ दिस चेंज ऑन आउटपुट। कि हमने 1% चेंज इनपुट में किया, हमने 1% से इनपुट घटा दिया, तो आपका आउटपुट में कितना परसेंट चेंज हुआ, मतलब कितना घटा। तो ये आपका दिस रिलेशनशिप या दिस जो होल प्रोसेस है वो आपका जो है बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन में बोलता है। बेसिकली इस रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ आउटपुट टू इनपुट चेंज। सो elasticity of production, I hope you will get it. For example, if we say that a production function with an elasticity of 1, अगर हम कहें कि एक प्रोडक्शन फंक्शन जिसकी इलास्टिसिटी 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने इनपुट में 1% चेंज किया और हमको आउटपुट में भी 1% चेंज हुआ। मतलब अगर हमने एक इनपुट को 1% से बढ़ाया तो आउटपुट भी 1% से बढ़ के हमको मिला। एंड दिस 1% चेंज इंडिकेट्स कांस्टेंट रिटर्न। कांस्टेंट रिटर्न मीन्स 1% इंक्रीज इन इनपुट इज ऑलवेज अकम्पाइंड बाई 1% इंक्रीज इन आउटपुट। और अगर हम बोले कि एक आपका इलेक्ट्रिसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स कि हमने इनपुट में 1% चेंज किया, लेकिन आउटपुट में जो चेंज मिला वो 1% से ज़्यादा था।
मतलब ग्रेटर देन 1। तो हमको ये इस तरह से इसको समझना चाहिए। अगर इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 मीन हमने इनपुट में 1% चेंज किया, बट हमको रिटर्न में उतना चेंज नहीं मिला, रिटर्न में हमको कम मिला। और अगर हम बात करें कि आपको कई बार जो है इलास्टिसिटी जो है वो नेगेटिव में भी होती है, लेस देन 0 भी होती है मतलब। तो उस केस में ये हुआ कि आपने 1% चेंज किया लेकिन आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, कोई रिटर्न, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो आपका 0 रिटर्न मिला आपको। So this is the some important terms which can be found very important during this discussion. Let us discuss the law of diminishing return, because this relation is based on or can be explained by this diminishing returns. As we know that every economic laws depends on some assumption, so these are the assumption of this law. One factor is variable and other factors are constant. Unit of variable input is homogeneous, technology remains constant, input prices are given. These are the basic assumption which will almost be following every laws. इस रिलेशनशिप के कुछ या इस जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है उसके कुछ अदर नेम्स भी हैं जो जिनको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एडेड कॉस्ट एंड एडेड रिटर्न्स बोलते हैं। एंड दिस लॉ एक्सप्लेन हाउ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चेंजेस एज द अमाउंट ऑफ वन रिसोर्स इज वेरिड सैटरिस वेरिएबल्स। कि जब हम एक रिसोर्सेज जो कि हमारा वेरिएबल रिसोर्सेज है उसके अमाउंट में हम चेंज करते हैं तो हमारा जो आउटपुट है उस पर कितना और कैसे चेंज होता है, इसको शो करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। So the law of diminishing returns state that as we continue to add more and more of any one input, that is variable input, its marginal product will be eventually decline. ये बोल रहा है कि जैसे जैसे हम वेरिएबल इनपुट को कंटिन्यू बेसिस पे बढ़ाते रहेंगे या ऐड करते रहेंगे तो उसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली इवेंचुअली डिक्लाइन होता जाएगा। जो मार्जिनल प्रोडक्ट वो है वो कैसे, जब हम उसको कंटिन्यू बेसिस पे बढ़ाते ऐड करते रहते हैं तो कैसे, पहले तो वो आपका जो है इंक्रीज होता है, फिर वो डिक्रीज होता है, फिर वो नेगेटिव हो जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ marginal product. According to this law, at some point, adding an additional factor of production result in smaller increase in total production. दूसरी बात क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे हम ये जो एक फैक्टर को ऐड करते जाते हैं, एडिशनल फैक्टर्स को जो है हम बढ़ाते जाते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे हमारा जो टोटल आउटपुट है वो बहुत ही कम जो है बढ़ता है या वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोलता है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को जो हम बेस्ट जो है इस लॉ को और साथ में जो जो रिलेशनशिप है इनपुट और जो आउटपुट है उसको हम बेस्ट समझ सकते हैं। देखिए ये पहला स्टेज जहाँ पे जहाँ पे एपी और एमपी जो क्रॉस हो रहा है, ये आपका पहला स्टेज खत्म हो जाता है। यहाँ पे जहाँ पे दोनों क्रॉस होते हैं वो पॉइंट होता है आपका जहाँ पे ईपी जो है इक्वल्स टू 1 होता है, और इसी पॉइंट पे जो है ईपीपी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। और एमपीपी मैक्सिमम कहाँ होता है? एमपीपी मैक्सिमम यहाँ पे होता है जहाँ से हम अगर सीधा लाइन खींचेंगे तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन जाएगा टीपीपी पे। तो टीपीपी पे एक हल्का सा फ्लक्चुएशन आता है, वहीं पे उस फ्लक्चुएशन पे ही जो है एक पॉइंट बनता है जहाँ पे एमपीपी मैक्सिमम होता है। तो वहीं पे जो है ये आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट ही सो यही करता है कि वहाँ से आपका
टीपीपी जो है इंक्रीज होता है, बट वो डिक्रीजिंग रेट से होता है। इससे पहले टीपीपी जो है इंक्रीज होता था इंक्रीजिंग रेट से। तो अगर हम बात करें टीपीपी और एमपीपी की रिलेशनशिप की, तो टीपीपी का पूरा ग्रोथ जो है एमपीपी पे डिपेंड होता है। मतलब आप एमपीपी को देखिए, पहले एमपीपी जैसे जैसे बढ़ रहा है, जब तक एमपीपी बढ़ेगा, आपका सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट इसको देखिए, जब तक एमपीपी बढ़ रहा है टीपीपी का ग्रोथ जो है इंक्रीजिंग रेट से हो रहा था। मतलब टीपीपी इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग रेट, और जैसे एमपीपी डिक्लाइन हुआ इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद में, तो वहाँ उसके बाद में टीपीपी इंक्रीज हो रहा है फिर भी, बट एट द रेट ऑफ डिक्लाइन या डिक्रीजिंग रेट के साथ वो इंक्रीज हो रहा है। और जैसे एमपीपी ज़ीरो हो जाता है, इस पॉइंट पे देखिए एक्स एक्सिस पे जैसे टच करता है, तो आपका वहाँ पे टीपीपी जो है मैक्सिमम होगा। और जैसे एमपीपी नेगेटिव हो जाएगा, आपका टीपीपी डिक्लाइन हो जाएगा। तो एमपीपी और टीपीपी का रिलेशनशिप बहुत क्लियर है। 4 मोड लेता है वो। पहला मोड क्या है कि एमपीपी बढ़ता है तो टीपीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, एमपीपी घटता है तो टीपीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। तीसरा मोड है एमपीपी ज़ीरो होता है तो टीपीपी मैक्सिमम होता है, और चौथा है एमपीपी नेगेटिव होता है तो टीपीपी गिर जाता है। सिंपल सा रिलेशनशिप है। दूसरा रिलेशनशिप है एपीपी और एमपीपी में। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब तक एमपीपी बढ़ रहा है, मतलब ग्रोथ कर रहा है, तब तक एपीपी भी ग्रोथ कर रहा है। भले ही उससे नीचे है एपीपी, बट वो बढ़ रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। जब तक एमपीपी बढ़ा तो एपीपी बढ़ा। जैसे ही एपीपी और एमपीपी एक जगह मिले तो वहाँ पे जो है एपीपी मैक्सिमम हो गया, और जैसे ही एमपीपी डिक्लाइन हुआ, घटने लगा, तो आपका एपीपी भी डिक्रीज होने लग गया। तो एपीपी और एमपीपी में ये क्लियर कट रिलेशनशिप, ये 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टीपीपी, एपीपी और एमपीपी। यहाँ एक साथ रिलेशनशिप इस टेबल के तहत दे सकते हैं। जैसे आप देखिए, जो मार्जिनल प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट के आधार पे ही आपका टीपीपी, हमने बात किया था ना अभी कि टीपीपी जो है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट के आधार पे ही बढ़ता है। तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट 2 था, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, मतलब कंटिन्यू मार्जिनल प्रोडक्ट जो है आपका बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप रिमार्क्स में देखिए टीपीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा तो टीपीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट होगा। अब देखिए आप पीपीपी जो है 4 के बाद में 5 हुआ, 5 के बाद में फिर 5 ही रह गया, मतलब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट वो कांस्टेंट हो गया। तो टीपीपी इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, यहाँ पे टीपीपी जो है कांस्टेंट रेट से ही इंक्रीज होगा। उसके बाद में आप आइए, 5 से 4 हुआ, 4 से 3 हुआ, और 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ। यहाँ पे एमपीपी डिक्रीज हो रहा है, तो टीपीपी आपका इंक्रीज होगा एट डिक्रीजिंग रेट। और जैसे ही टीपीपी नहीं, जैसे ही एमपीपी ज़ीरो हुआ, वहाँ पे आप देखिए आपका टीपीपी के नाम से मैक्सिमम होगा। यहाँ 29 इसका जो है टोटल प्रोडक्ट जो है वो जो है मैक्सिमम है। और जैसे ही एमपीपी नेगेटिव हुआ, आपका टीपीपी यहाँ से 29 से 28 और 26 हो गया। तो टीपी डिक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, यहाँ से टीपी के बुरे दिन स्टार्ट हो गए। तो दिस इज द रिलेशनशिप। आप यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट और इसमें भी देख सकते हैं कि जब तक क्या नाम से आपका टीपीपी बढ़ रहा था तो आपका एपीपी भी बढ़ रहा था। तो इस तरह का ये रिलेशनशिप, ये कौन से स्टेज में किसका क्या बिहेवियर होता है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, बट ये समराइज व्यू है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि स्टेज फर्स्ट में टीपीपी जो है इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट होता है, और उसमें स्टेज फर्स्ट में जो है आपका
मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेज होता है, रीच इट्स मैक्सिमम एंड देन डिक्लाइंस टिल एम आर इक्वल टू ए पी। और एवरेज रेवेन्यू जो है फर्स्ट स्टेज में जो है इंक्रीजेज होता है और अपने मैक्सिमम को प्राप्त कर लेता है। सो फिर सेकंड स्टेज की बात करें तो यू कैन से हियर एट टीपीपी इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट टिल इट रीच इट्स मैक्सिमम। So these are the behavior of TP, AP and MP in different stages. What is conclusion of this? Conclusion that among three stages, stage 2 is most profitable, feasible and economical for farmers because it lies between two maximum points as TP and AP. आप वापस जाके देखेंगे उस पर तो आप पाएंगे कि उस पर्टिकुलर जो स्टेज सेकंड है उसके बीच में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं टीपी और एपी, और वो दोनों ही पॉइंट जो है उसमें मैक्सिमम होता है। तो इसलिए उसको हम जो है मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टेज और फिजिबल स्टेज फॉर द प्रोडक्शन बोलते हैं, रेशनल स्टेज उसको बोलते हैं। बाकी फर्स्ट और सेकंड जो है इरेशनल स्टेजेस है, हम उनको सूटेबल नहीं मानते हैं प्रोडक्शन के लिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर बीइंग विथ मी, एंड आई होप that you will definitely learn from this video, and if you have query we will discuss by our WhatsApp group, and we will discuss in our another physical classroom classes. So till then, thank you for watching, and stay safe, stay happy and stay definitely at home during this COVID-19 situation. Thank you guys, bye, take care.